Hello everyone. Today we will discuss about the connective tissue. This is the new topic for you all. So let's see what is about the connective tissue. First of all, my name is Survi. I'm a nursing tutor. I'm posting every day new videos on different topics. Even I'm taking different subjects too. So you will get all subjects notes over here. You can watch all those videos every day. Thank you for watching my channel. Now we'll start with the connective tissue. Connective tissue has a formed elements, fibers and cells and amorphous substance, ground substance. What's saying here connective tissue जो है एक formed element होते हैं जिसमें fibers और cells present होते हैं और amorphous substance present होते हैं जैसे कि ground substance. Let's see about the components of the connective tissue. Connective tissue has the two components, cells and matrix, which has fibers and ground substance. First, we'll see about the cells. Seven types of cells are found in the connective tissue. Here it's saying that in our connective tissue there are seven types of cell will found. Then second will be the fibers. The connective tissue fibers are three types. That is collagen, elastic, and reticular fibers. Next, fibers like first collagen fibers, they appear white and therefore are also called white fibers. कोलेजन फाइबर्स क्या होते हैं कि उनका अपीयरेंस जो होता है वो व्हाइट होता है इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं व्हाइट फाइबर्स बोलते हैं. दे कंटेन प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन. द फाइबर्स आर सॉफ्ट बट स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बट दे आर नॉट इलास्टिक. तो व्हाट सेइंग दैट हियर फाइबर्स जो है वो काफी सॉफ्ट होते हैं लेकिन दे आर स्ट्रॉन्ग एंड flexible, they are not elastic. It means you can't move like a elasticity. Collagen fibers are formed and maintained by a fibroblast. They are found in all types of connective tissue. Next, depends upon diameter classified into four types like type 1, type 2, type 3 and type 4. All type 4 are having the different diameters. Next we'll see about the reticular fibers. These are similar to collagen fibers like type 3 in chemical structure. They are thin fibers showing branching and hence form a network or articulum. तो what they are saying कि कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं काफी सिमिलर होते हैं. सिमिलर इज लाइक टाइप 3 की तरह होते हैं. उनका केमिकल स्ट्रक्चर जो है वो टाइप 3 की तरह होता है. यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं काफी थिन फाइबर्स होते हैं. उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं. वो सारे ब्रांचेस मिलके क्या करते हैं एक नेटवर्क का फॉर्मेशन करते हैं या फिर एक आर्टिकुलम का फॉर्मेशन करते हैं. दे डू नॉट रन इन बंडल्स. तो क्या हो रहा है कि जो है रेटिकुलर फाइबर्स जो है वो बंडल्स में फॉर्म नहीं करते या फिर रन नहीं करते हैं. तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में होता है. बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ epithelial tissue, walls of blood vessels and lymphatic organs. Next we'll see about the elastic fibers. Elastic fibers are thin and highly elastic. Elastic fibers जो होते हैं वो काफी thin होते हैं काफी elastic होते हैं. The fibers branch and anastomose with each other but do not form bundle. Anastomose का क्या होता है कि दोनों आपस में जुड़ जाते हैं. ठीक है जो फाइबर्स जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं आपस में मिलकर एक ब्रांच बनाते हैं एनास्टेमोस हो जाते हैं लेकिन क्या होते हैं बंडल का फॉर्मेशन नहीं करते हैं. इन बल्क दे अपीयर येलो. क्या होता है कि जब सारे बंडल्स को आप एक साथ लाओगे सबको एक ह्यूज अमाउंट में लेके आओगे तो वो येलो कलर के दिखेंगे इसलिए उनको क्या बोला जाता है येलो इलास्टिक फाइबर हम बोलते हैं. तो इलास्टिक फाइबर्स क्या होते हैं वो स्ट्रेचेबल होते हैं. आप अगर चाहोगे तो उनको रबड़ की तरह खींच भी सकते हैं इसलिए कहा जाता है कि एज अ रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है उनका. इलास्टिक फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स और इलास्टिन. इलास्टिक फाइबर जो है एक ऐसे प्रोटीन से बना होता है जिसको कि हम इलास्टिन बोलते हैं. नेक्स्ट कहता है कि इलास्टिन कंटेन्स अमाइनो एसिड दैट इज कॉल्ड वैलिन. तो इलास्टिक क्या होता है इलास्टिन जो कंटेन करता है अमाइनो एसिड को कंटेन करता है जिसका पहला है वैलिन और ज्यादा वो रिच होते हैं ग्लाइसिन एंड प्रोलिन में. तो अगेन ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन हो सकता है कि कौन कौन से अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं और रिच किन में होता है तो ग्लाइसिन और प्रोलिन में. नेक्स्ट विल सी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन. तो इलास्टिक फाइबर्स जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ होता है हमारे. तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में होता है वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में होता है लिगामेंटम फ्लेवर में होता है और कैप्सूल्स ऑफ द ग्लैंड में होते हैं. नेक्स्ट विल सी अबाउट द ग्राउंड सब्सटेंस. द ग्राउंड सब्सटेंस में क्या दे रहा है द ग्राउंड सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ वाटर कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स एंड प्रोटीन्स. तो जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो कंटेन करते हैं वाटर को कार्बोहाइड्रेट्स को लिपिड्स को और प्रोटीन्स को. तो यहाँ क्या कह रहा है दे टुगेदर कंस्टिट्यूट
मैट्रिक्स, सब एक साथ मिलकर क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो क्या कह रहे हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो एक साथ मिलकर क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये म्यूकोसैकेराइड्स क्या होता है, ये या तो ये सल्फेटेड होते हैं या तो नॉन सल्फेटेड होते हैं, और कॉम्बिनेशन में अगर इनको देखा जाए तो ये हाइलोनिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये हाइलोनिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमारे साइनोवियल फ्लूइड में पाया जाता है, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है, या फिर विट्रस ह्यूमन में पाया जाता है। नेक्स्ट है जो क्रोनोटिन 4 होते हैं वो सल्फेट कहाँ होते हैं, कार्टिलेज मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। क्रोनोटिन 6 सल्फेट जो होते हैं वो कार्टिलेज, अगेन ये भी कार्टिलेज मैट्रिक्स में। लेकिन क्रोनोटिन सल्फेट बी जो होता है वो हमारे स्किन और कॉर्निया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट विल सी अबाउट द सेल टाइप्स। तो सेल टाइप्स में हमारा, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे 7 सेल टाइप्स हम देखेंगे जो कि हमारे कनेक्टिव टिश्यू में। तो हमारा फर्स्ट जो है वो है फाइब्रोब्लास्ट। नीचे आप एक पिक्चर भी देख सकते हो, वहाँ पे क्लियर आपको दिख रहा है फाइब्रोब्लास्ट का। नेक्स्ट सी, इट सेल्स इज फ्लैटेंड और फ्यूजिफॉर्म इन शेप विद सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। आप देख रहे हो उसके डायग्राम में भी आपको फ्यूजिफॉर्म का ये दिखेगा, फ्लैट दिखेगा, ठीक है। तो इनके न्यूक्लियस क्या होते हैं, इन सेंटर में पाए जाते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, रेटिकुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स। तो क्या कह रहा है कि जो फाइब्रोब्लास्ट का काम क्या है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोलेजन का फॉर्मेशन करें, रेटिकुलर का फॉर्मेशन करें, और साथ ही साथ इलास्टिक फाइबर्स का भी फॉर्मेशन करें। दे हेल्प इन हीलिंग। क्या करते हैं जो फाइब्रोब्लास्ट जो है वो काफी हेल्पफुल होते हैं हमारे ऊन को हील करने में। नेक्स्ट देखेंगे मैक्रोफेजेस, हिस्टियोसाइट्स। मैक्रोफेजेस का काम क्या क्या होता है, इनको हिस्टियोसाइट्स भी बोला जाता है। ये सेल्स होते हैं काफी न्यूमरस, लेस न्यूमरसली होते हैं, और फाइब्रोब्लास्ट से भी कम होते हैं ये। तो क्या कह रहा है कि दिस सेल्स आर फैगोसाइटिक इन फंक्शन। फैगोसाइट का मतलब क्या है, खा जाते हैं, इनका फंक्शन क्या है, खा जाना, ठीक है। दे फैगोसाइटोस बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन बॉडीज। अगर उनके लगता है ना इन सेल्स को कि हमारे बॉडीज में अगर कोई भी फॉरेन बॉडीज आ रहे हैं, बाहर से कोई भी चीजें एंटर कर रही हैं, कोई बैक्टीरिया आ रहा है, कोई फॉरेन बॉडीज आ रहा है, तो इनको फैगोसाइटोस कर लेंगे, खा जाएंगे ये। मैक्रोफेजेस आर क्लासिफाइड इनटू फिक्स्ड एंड वॉन्डरिंग वैरायटीज। तो क्या कह रहा है, जो माइक्रोफेजेस है उनको क्लासिफाई किया गया है फिक्स्ड में और वैंडरिंग वैरायटीज में। तो जो फिक्स्ड टाइप के होते हैं वो अटैच्ड होते हैं रेटिकुलर फाइबर से, ठीक है। और क्या होता है, उनका शेप जो है वो इरेगुलर होता है। और वैंडरिंग टाइप जो है वो काफी फ्री होते हैं, उनका जो शेप होता है ना वो ऑवॉइड होता है, वो ऑवॉइड एकदम रहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम प्लाज्मा सेल्स के बारे में। तो कह रहा है जो प्लाज्मा सेल्स है वो क्या होता है, न्यूमरस इन म्यूकस और सब म्यूकस बोथ ऑफ द गट, ठीक है। दिस सेल्स आर राउंडेड इन शेप। प्लाज्मा सेल्स जो है वो राउंड है, तो नीचे आप देख रहे हो उनका शेप भी क्या है, राउंड शेप है। ये सेल्स क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हमारे बॉडी में एंटीबॉडीज को। और ये एंटीबॉडीज कहाँ हो जाते हैं, स्टोर होते हैं हमारे सेल के विद इन द सेल ही ये हो जाते हैं स्टोर। और स्पेशली किस फॉर्म में, सेल्स बॉडी के फॉर्म में। तो ये अगेन आपका एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, सो माइंड इट। नेक्स्ट हम देखेंगे मास्ट सेल के बारे में। तो ईच सेल इज राउंडेड इन शेप विद द सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस। दे आर प्रेजेंट इन फाइब्रस कैप्सूल्स ऑफ द लीवर एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो स्पेशली मास्ट सेल्स हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, फाइब्रस कैप्सूल के लीवर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। और ये प्रोड्यूस करते हैं हिस्टामिन को, जो कि हमारे एलर्जिक रिएक्शन से क्या करता है, कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पिगमेंट सेल्स। वो क्या होते हैं, वो हमारे आइरिस में प्रेजेंट होते हैं, और साथ ही साथ हमारे कोरियोड ऑफ आई में भी प्रेजेंट होते हैं। रेटिकुलर सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू में। और फैट सेल्स जिसको कि हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, ये सेल्स प्रेजेंट पॉलीगोनल शेप में होते हैं, और ये कंटेन करते हैं साइटोप्लाज्म को, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट में। और इनका लाइक न्यूमरस होते हैं एडिपोस टिश्यू में। तो दैट वाज ऑल अबाउट द connective tissue, right? So just watch my videos. Please share, like, and subscribe the videos. It will be very helpful for you. You need not to make the notes because I have made in very concise and short form. Thank you for watching.